So today's topic is our file upload in web application. How this works basically. So let's just understand its with go through with its introduction. Today we will deliver into the concept of file upload, which are essential for many web applications. We will explore what file upload are, why they are important, and some common scenario where they are used, such as uploading file, picture, documents, and media files. I will also show the actual project where I had worked on this, where I had implemented basically. Let's first go through the slide and file upload, how it works. Basically, 3 point we need to know before file uploading how it works to know HTTP and client side and what is server side. Today we will deliver into the concept. File upload operates over HTTP protocol using multipart form data encoding. On the client side, users select file to upload, which are then sent to the server side, and all the logic how where it will be stored on cloud or in local repository, local storage. It all the logic are written in server side process. Moving to security concern, it provides file validation and sanitization, authentication and authorization, and handling miscellaneous file. Security in while it comes with security is crucial when handling file uploads. This involves validating and sanitizing file to ensure they are safe, manipulating authorization and auth- authentication and authorization to restrict upload to unauthorized user, and protecting the server from miscellaneous files and insecurity. We can handle large file and chunks of reusable upload. We can use upload again and again with this with the help of file upload method, and scalable in storage solution too. And we can add, and the one best part is we can add constraint to it. And if like for example, if you wanna add, like if I wanna store only 2 MB file, not more than 2 MB file, we can add constraint to our server side. So let's go through the code, actual code, how I implemented. If you guys want brief how from scratch I will build it, but I'm afraid that I don't have time today. I will show you tomorrow if anyone wants. Then basically I will show here for quick revision code actual where I had been implemented. This is a project where I had implemented. If you want, then basically I will use here to file upload is Malter. There are many others Express. You can also search here Express file uploader. We can use that also. But here I am basically using npm package which is Malter. With the help of Malter, let's see how we do it. सो गोइंग टू आवर स्कीमा में डिज़ाइन कैसे किया, इसके हमें कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली हम ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पर टास्क में यूज़ किए हैं। तो टास्क सेक्शन में जाकर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि टाइटल है, ये है, ये है, ये है। वहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड बोल के होता है। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कैसे काम करता है फ़ाइल अपलोड। मॉनिटर कैसे काम कर रहा है कि जब क्लाइंट साइड से डेटा आता है फॉर्म में, सपोज़ हम लोग यहाँ पर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फॉर्म में वहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन भी है। अगर फाइल अपलोड कर रहा है यूज़र, जब सेंड कर रहा है, तो वहाँ पर मॉल्टर मिडलवेयर के जैसे काम करता है। मिडलवेयर ही है एग्जैक्टली। मिडलवेयर में मॉल्टर के हेल्प से जेसन फॉर्मेट में फाइल एक्चुअल में सेंड नहीं होता है, तो वहाँ पर हम लोग मिडलवेयर ये मल्टर यूज़ करते हैं। मल्टर क्या है? मिडलवेयर हम पहले बोल दिए। मिडलवेयर लिखने के बाद मल्टर मल्टर क्या करते हैं, वहाँ से लेने के बाद हम लोग अपना लोकल स्टोरेज में डाल रहे हैं, उसका लोकेशन फाइल डाल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से फिर क्लाउडनेरी पर अपलोड कर रहे हैं। फिर क्लाउडनेरी पर अपलोड होने के बाद जो उसका जो लिंक बनता है यूआरएल, वो यूआरएल हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे फाइल अपलोड बोल के।
यहाँ पर वो उसका यूआरएल रहेगा। गॉट इट? ये प्रोसेस है। तो अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डी में एक उसका वेरिएबल क्रिएट करना होगा, जैसे कि कहाँ पर, जहाँ पर उसका यूआरएल रखना है फाइल का, ये क्लाउडनेरी का। तो यहाँ पर ये इसका फाइल अपलोड बोल के स्कीमा बनाया, टाइप होगा स्ट्रिंग बेसिक, यहाँ पर हो गया। और ये तो पता ही होगा सबको, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है टास्क का। ये हो गया। तो अब आया बात मिडलवेयर। तो मिडलवेयर है, तो मिडलवेयर सेक्शन में जाना होगा, अलग से फाइल बनाना है, तो वहाँ पर हम मल्टर बोल के अलग से, क्योंकि ये रीयूजेबल है। कि ऐसा क्या है कि हर जगह हम लोग अपना फाइल अपलोडर फंक्शन नहीं लगाते हैं ना। जैसे कि अगर कहीं पर साइन अप फंक्शन है, साइन अप में तो नहीं चाहिए, लेकिन साइन अप में चाहिए, लॉगिन में नहीं चाहिए, क्योंकि लॉगिन में सिंपल ईमेल और पासवर्ड चाहिए। साइन अप में कभी कभी क्या होता है, फोटो भी अपलोड होता है। तो, तो लॉजिक उसी लिए अलग से कंपोनेंट बना के रखना में ईजी होता है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसे बंडल नहीं कर रहे हैं। तो यही है मल्टर का, बस मल्टर इंपोर्ट करना होता है। मल्टर एक पैकेज आता है npm बोल के, npm आई मल्टर इंस्टॉल होता है, उसके बाद ये इंपोर्ट हो गया। और उसके बाद स्टोरेज एरिया कहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या होता है कि इसको पहले मल्टर हम डायरेक्टली, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम डायरेक्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट आते ही हम मल्टर के थ्रू क्लाउडनेरी पर अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता? ये क्या लगता है ऋषभ, होता है? तो वहाँ पर मल्टर के यूज से, मिडलवेयर के यूज से डायरेक्ट हम क्लाउडनेरी पर अपलोड कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या किए इम्प्लीमेंट, कि पहले लोकल रेपोजिटरी में, लोकल स्टोरेज में सर्वर पर फाइल को लेके आके उसके बाद अपलोड। इससे क्या होता है कि अगर एक बार फेल भी हो गया मेरा अपलोड, तो फिर से यूजर को अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। ये मेरे साइड से लोकल रेपोजिटरी से ही हो, जब तक उधर स्टोर नहीं होगा तब तक मेरा बैकएंड कॉल करते रहेगा। उसलिए हम लोग एक लोकल स्टोरेज में कहाँ पर डाल रहे हैं, वहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, सीवी मतलब कॉल बैक फंक्शन हो गया, वो हम टेम्प फाइल में बना रहे हैं, टेम्प फाइल में यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं अलग से फाइल में। हाँ, लोकल में स्टोर करके फिर उसके बाद वहाँ पर क्लाउड एरिया में ट्रांसफर होगा, अपलोड हो रहा है। डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब कभी कभी क्या होता है, कॉल फेल हो गया, एपीआई कॉल फेल हो गया, तो फिर क्या होगा, यूजर को लगेगा हो गया, लेकिन वहाँ पर अपलोड ही नहीं हुआ, अब बैकएंड एरर मार रहा है। तो ये 2-3 प्रोसेस है, ये फास्ट भी रहता है, बेसिकली यही है। तो ये पूरा लॉजिक हो गया मल्टर का, मिडलवेयर का। अब मिडलवेयर हो गया, यहाँ पर हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल छोड़ देते हैं। अब इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया? टास्क में। ओके, राउटर में डायरेक्ट, राउट में डाल डाल दिया। राउट्स में जाके डायरेक्ट ऐसे करते हैं, टास्क राउट हो गया। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हम लॉग करने के लिए था, ये हटा भी सकते हैं, बड़ा बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक, हम इसका, इससे भी अच्छा हम बोलते हैं, एक बार हम यही दिखा देते हैं npm, इजी रहेगा। सिंगल फाइल अपलोड करना है, तो यहाँ पर सिंगल अपलोड डॉट सिंगल करना होता है। अपलोड कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग का भी जो राउटर है वहाँ से, मिडलवेयर से जो किए थे का, वहाँ से बस उसमें डालना, स्पेसिफाई करना पड़ता है एक टाइम में कितना होगा, कितना फाइल अपलोड हो सकता है। सिंगल, सिंगल डबल मल्टीपल क्या है यहाँ पर दिखाते हैं। एक्चुअल में ये हो गया मल्टर का यहाँ पर साइट, यहाँ पर बताया गया है ये कैसे कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया फंक्शन, ये फॉर्म वाला फ्रंट एंड पास, ये फॉर्म को बेसिक एग्जांपल देके दिखा रहा है कैसे काम कर रहा है, हाउ इट स्टार्ट हो गया। तो ये राउट में ऐसे डिफाइन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी लगा हुआ था, बस बेसिकली हमको यहाँ पर इंस्टेंस यहाँ पर लेके इंपोर्ट करना पड़ा। और वहाँ पर क्या, कितना क्या मल्टीपल रहेगा तो एरे डाल के करना था, या तो सिंगल, एक बार में सिंगल है तो सिंगल, नॉर्मली ऐसे इम्प्लीमेंट एकदम ईजी। अब एक्चुअल देखते हैं कोड। फॉर्म है, ये फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ फॉर्म है, उसमें हम लोग बस एक नॉर्मल बटन ऐड करना था। वो बटन का नाम हो गया इनपुट टाइप, नॉर्मली इनपुट लेना है, इनपुट डाल के टाइप क्या रहेगा, फाइल, फाइल अपलोडर नेम हो गया, बेसिक चेंजेस, और हैंडलर कॉल कर दिया यहाँ पर। अब हैंडलर में क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर, लेकिन लॉजिक बताने का फायदा नहीं है यहाँ पर, फिर बता देते हैं। यहाँ पर बेसिकली अगर फॉर्म डेटा है, उसमें फॉर्म में अगर ये क्या बोलते हैं आपका फाइल है, तो फिर भी चलेगा, जाएगा, पास होगा, नहीं भी है फिर भी जाएगा, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर।
इतना लॉजिक है नहीं यहाँ पर कुछ भी। बेसिकली यहाँ पर फाइल अपलोड का यही ऑप्शन, अगर फाइल अपलोड है तो ये करो, नहीं तो ये नहीं करो। बस इतना हो गया फ्रंट एंड से पार्ट। है तो डेटा अपेंड करो, नहीं तो ये नहीं करो। अब बैक एंड का जो भी है बैक एंड का ही था, वो क्लियर कर चुके हैं। एक बार रैप अप करने के लिए फिर से बोल देते हैं। एट फर्स्ट क्लाइंट्स, जब फ्रंट एंड से बैक एंड तक के लिए फाइल जाने के नॉर्मल डेटा जाता है, जेसन फॉर्मेट में चले जाता है, लेकिन फाइल पास करने के लिए फाइल डायरेक्ट पास नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिडलवेयर यूज़ करते हैं। कौन सा मिडलवेयर जनरली यूज़ किया हम यहाँ पर यूज़ किया, दूसरा भी एक्सप्रेस का फाइल अपलोडर भी है हम, लेकिन नोट पैकेज यूज़ किया, दैट इज मल्टर। तो मल्टर बेसिकली क्या करता है, मिडलवेयर है। मिडलवेयर में जब रिक्वेस्ट आता है उसी टाइम में अपलोड करने के लिए, फाइल अपलोड करने के लिए यूज होता है। अब मल्टर का हेल्प से हम लोकल रिपोजिटरी में, लोकल स्टोरेज में, लोकल सर्वर में उसका फाइल स्टोर कर रहे हैं। अब उसका फाइल स्टोर करने के बाद फिर बैकएंड से वो फाइल एक्सेस करेगा, उसको हम वो फाइल लोकेशन को दे देते हैं हम कहाँ पर, क्लाउडनेरी में। क्लाउडनेरी स्टोर करता है, फिर क्लाउडनेरी एक यूआरएल जनरेट करता है, वो फाइल, फोटो, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट इट जनरेट अ यूआरएल। वो यूआरएल देन आई सेव इनटू माय डीबी, डीबी में सेव हो रहा है। बेसिकली यही है और कुछ नहीं। दैट्स ऑल, बैकएंड का लॉजिक यही है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इसमें सिंगल कर सकते हैं, इसमें हम स्पेसिफाई, आई कैन स्पेसिफाई कितना एक बार में फाइल लेना है हमको यूजर से। आई मीन 5, 10, 2, 3, ये स्पेसिफाई करने वाला हो गया। नहीं, हमको यूजर के ऊपर डिपेंड करना है, यूजर जितना भी डाल सकता है, तो यहाँ पर हम यूज करना है। ये कैसे स्टोर करेगा, एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। आई मे बी रॉन्ग बट ओके, श्योर।